The Delhi Assembly session has commenced. Aam Aadmi Party MLA and former Chief Minister Atishi has alleged that her party MLAs are not being allowed to enter the house. She has stated that the BJP has crossed the limits of dictatorship after coming to power. Aam Aadmi Party MLAs were suspended from the house for 3 days for raising the slogans of Jai Bhim. This has never happened in the history of Delhi Legislative Assembly, that the elected MLAs are not being allowed to enter the assembly premises. Meanwhile, a political slugfest is ongoing between the BJP and the Aam Aadmi Party, as the leader of opposition Atishi has protested against the removal of the photos of Dr. B.R. Ambedkar and Bhagat Singh from the CM's office. Meanwhile, BJP MLA Satish Upadhyay has accused the Aam Aadmi Party of neglecting the condition of the statue of Shahid Bhagat Singh at a park in Malviya Nagar. Upadhyay has claimed that the statue had been broken for the past 3 years, but no action was taken by the former Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti. On the third day of Delhi Assembly session, Chief Minister Rekha Gupta will propose the name of the BJP MLA Mohan Singh Bisht for the post of a Deputy Speaker. Two separate motions, one by CM Rekha Gupta and other by the MLA Anil Kumar Sharma, backed by Gajendra Singh Yadav, will be moved to elect Bisht for the post. There are no other contenders in the fray for the post. Bisht, who is a 6-time MLA and a senior BJP leader, has won the Mustafabad Assembly constituency in the February 5th polls and defeated Aam Aadmi Party's Adil Ahmed Khan. Arzu is joining me live from outside the Delhi Assembly session. In fact, Delhi Assembly House. Let's also get in a sense of what is happening, as Arzu is joining me live on the broadcast. Arzu, as the Delhi Assembly session has been extended today, what remains to be tracked in the latest for at this point of time to be monitored as could take place in the next few hours? Well, yes, today is the third day of the Delhi Assembly session, and as the session begins, before that even there has been a political war of words that have started as the Aam Aadmi Party MLA is alleging that they are not allowed to enter the Delhi Assembly premises, and also they were holding the protests outside the Delhi Assembly because they are not allowed to enter. And Atishi in fact tweeted and said that she alleged that her party MLAs are not being allowed to enter the house, and she wrote that the BJP people have crossed the limit of dictatorship after coming to power, and Aam Aadmi Party MLAs has been suspended from the house for 3 days for raising the slogans of the Jai Bhim. And in fact, on the other side, the Bharatiya Janata Party MLAs were raising Modi slogans, and there were no action being taken against them. But yes, those who were raising the slogan of the Jai Bhim were suspended for the 3 days, and now they are not allowed to enter the Delhi Assembly premises. This is what the Atishi and the other MLAs who are standing outside the Delhi Assembly are saying, and also they are alleging that there has been a dictatorship that the BJP is showing by not allowing the opposition to enter the premises area of the Delhi Assembly. Yes, Simran. Well, all right, Arzu, as the assembly session is underway at this point of time. Meanwhile, several political reactions have also come in right now, reacting on the controversy that has been raging ahead of the assembly session. Let's now listen in. सीएजी पर चर्चा होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है एक, और 0 आवर होगा कमेटी। तो सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया, और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल
3 लोगों को काम दिया गया 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, सीएजी पर गंभीर चर्चा दिल्ली की में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होनी आवश्यक है और परसों ये रिपोर्ट टेबल हुई थी। इस रिपोर्ट के टेबल होने के बाद कुछ विषयों पे शुरुआत हुई, अब आगे उस पर चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य उसे पढ़कर आएंगे। उसमें जो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें उस दिन सामने आई थी, देखते हैं आज और क्या क्या उस विषय में सामने आता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र सर, कल सीएजी की एक्साइज पॉलिसी पे रिपोर्ट पेश की गई है दिल्ली विधानसभा के अंदर। उसमें सीधे तौर पे जो आप लोगों ने कंप्लेंट्स लगाई थी उसकी सारी इरेगुलरिटीज वहां देखने को मिली है। तो अब आप लोगों की डिमांड्स क्या होंगी? उसमें कैग में चर्चा होगी विस्तार। जो कैग की रिपोर्ट रखी है पहली, जो शराब नीति में जो घोटाला हुआ, उसके लिए विस्तार से चर्चा होगी सदन में। और जिस प्रकार उसमें जो कमियां हैं, जिस प्रकार घोटाला हुआ, उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। अभी तो मेन मुद्दा तो यही है दिल्ली की जो गाड़ी कमाई लोगों ने अपने अयासी में लुटाई, जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा है कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना। और अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सदन पर कैग की रिपोर्ट को रखा है, और इस कैग रिपोर्ट में जिस प्रकार की खामियां हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार इसमें उजागर हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है, आज उस पर चर्चा होगी। और इस आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और इनकी पूरी कैबिनेट का चेहरा भी उजागर होगा कि कहां कितने बेईमान ये लोग हैं, किस तरीके से डबल चेहरे के साथ दिल्ली के लोगों को इन्होंने लूटा है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा दिल्ली की भलाई के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली के स्कूलों के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली के अस्पतालों के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली की सड़कों को ठीक करने के लिए लगना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा इन बेईमानों की जेब में गया है। और ये जेब में जाने के कारण से जो दिल्ली को राजस्व की हानि हुई है, 2000 करोड़ से ऊपर का जो हानि राजस्व की हुई है, इसका जवाब इस सदन में चर्चा के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। और इन सब के जेल जाने का रास्ता पूरी तरह से तैयार हो रहा है। क्या कहना चाहिए इसको? अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचार किया है। जो शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कैसे मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी मिलकर शराब के जरिए दिल्ली के पैसे को लूट रहे थे और पाठशाला की वादा करने वाले लोग दिल्ली में मधुशाला वाला भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में है और सीएजी रिपोर्ट इन सभी का खुलासा करती है। इन सब से बौखला और घबराकर अरविंद केजरीवाल और आपदा डाइवर्ट करने का प्रयास। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.